A very good morning to you all. I am MD Yahya Ansari, and today I am now going to start online video tutorials, and the name of this tutorial is Fusion Classes, Fusion Tutorials. And in this video I am going to deal about the science including all the chapters, that is physics, chemistry as well as biology. So this is my online video to you, online tutorial to you, and the name of this tutorial is Fusion Tutorials. Okay, so all of you have to give your attention here. So now I am going to today uh, very fresh uh, very fresh chapter, chapter 6, and this is the chapter from the biology, and the name of this chapter is life process, and this is the chapter from the class 10. Okay, so life process. So at first, introduction of the life process. So as we know that all the every type of organism need food. ओके, नीड फूड फॉर द न्यूट्रिशन फॉर द लाइफ. तो हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है कि वो उसको मिले, फूड मिले, ठीक है, और फूड में न्यूट्रिशंस मिले. तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर फूड में ऐसा कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशंस और एनर्जी देता है. सो प्लीज़ फोकस हियर. इफ यू टॉक अबाउट फूड, so the food is made by the different type of the components. Food is made by the different type of the components. Carbohydrate. Okay, carbohydrate. Next is fat. Next is protein, and the next is protein as well as vitamins and minerals. So these are the components of the food. Okay, so these are the components of the food. Actually, these are the components of the food, and by the mixing of these different type of the components, the food is get ready. The food is ready, and if we eat this food, if we eat any type of food, then this food is completely break down into the different parts and split into their different, and split into its different components like carbohydrate, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और हमारे शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें मिल जाता है. और अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर हमारे बॉडी में अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होता है कि हमें डिसऑर्डर्स हो जाता है. सो वी कैन से दैट डिफिशियंसी ऑफ द न्यूट्रिशंस, डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, इट लीड्स टू द डिफिशियंसी, एनी टाइप ऑफ डिफिशियंसी. ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए अगर हम बात करते हैं विटामिन की, सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ विटामिन आर फाउंड. विटामिन ए, डी, ई, के, बी. So different type of vitamins are found, in which if any persons are suffering from the deficiency of the vitamin D, किसी persons में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, उसमें उसको बोन से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिजीज हो जाती है, उस पर्सन्स का बोन कमजोर हो जाता है, और बोन कमजोर होने की वजह से क्या होता है कि वो पर्सन्स भी काफी वीक हो जाता है. ठीक है, अगर किसी पर्सन्स को विटामिन ए की कमी होती है, सो विटामिन ए इज कॉमनली सेड टू बी व्हाट, रेटिनॉल. विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिनॉल. मीन्स ये जो विटामिन ए है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरी गुड टाइप ऑफ, वेरी क्लियर टाइप ऑफ विजन. So these are the different type of vitamins, minerals, protein, fat and carbohydrates. So commonly we can say that these are the different type of the components of the food. और हम लोगों ने ये देखा कि आखिर ये component of food किस तरह से हमारे बॉडी में काम करते हैं. So now I am going to deal about the nutrients. What is nutrients and what is the nutrition? Okay. तो आप लोग देखिए यहाँ पर कि क्या होता है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन, ओके. अगर हम बात करें न्यूट्रिशंस की, सो न्यूट्रिशंस आर मेनली फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. नंबर वन इज autotrophic nutrition. Okay, and number two is heterotrophic nutrition.
अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस की. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑटो? ऑटो मीन्स सेल्फ. द मीनिंग ऑफ ऑटो मीन्स सेल्फ. ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक मतलब, ट्रॉफिक मीन्स टू सिंथेसाइज द फूड. सो दोज ऑर्गेनिज्म हु आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर फूड ओन. जो भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता हो, यहाँ पर खाना पकाना नहीं, हम लोग जो खाना पकाते हैं वो नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं कि सिंथेसाइज ऑफ द फूड फ्रॉम द हेल्प ऑफ द सनलाइट. सो दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म who have the tendency to making their own food by the help of sunlight is commonly said to be autotrophs. Those organisms are commonly said to be the autotrophs, and those type of nutrition is commonly said to be the autotrophic nutrition. So अगर हम लोग autotrophic nutrition को देखने जाएं तो autotrophic nutrition का अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो इसका एग्जांपल क्या होगा? प्लांट. So we know that plant are the autotrophs, means plant have the tendency to making their own food by the help of the sunlight from the process of photosynthesis. मतलब प्लांट क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करते हैं और उससे क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट प्लांट आर द autotrophic. Plants are the autotrophs. Now heterotrophic nutrition. So what is the meaning of heterotroph? हेट्रो का मतलब क्या होता है? यहां पर देखिए, हेट्रो मीन्स डिपेंडेंसी. मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशंस के लिए, जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड हो, उसको हम क्या कहेंगे? हेट्रो. ठीक है. तो दूसरे पे डिपेंड कौन होता है? एनिमल्स. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हु आर डिपेंड ऑन द autotroph फॉर देयर फूड. तो एनिमल्स क्या है? हम लोग एनिमल्स हैं. वी आर द एनिमल्स एंड वी आर डिपेंड ऑन autotroph. वी आर डिपेंड ऑन प्लांट फॉर आवर फूड. हम लोग क्या है? हम लोग प्लांट पे डिपेंड. हम लोग जो भी खाते हैं वो प्लांट से ही फूड लेकर खाते हैं. सो एनिमल्स आर द हेट्रोट्रॉफ्स. ओके. सो heterotrophs are again divided into 3 different type of the categories. Okay, here heterotrophic nutrition is again divided into 3 type of categories. The number 1 is saprophyte. Okay, next one is parasite. Next one is holozoic. Next one is holozoic. So these 3 types of the nutritions. अब हम लोग बात करते हैं saprophyte की. So saprophyte is also a type of heterotrophs. Saprophytes are those type of the species, are those type of the organism who depends on the dead decaying matter for their nutrition. मतलब अपने भोजन के लिए ये किसी डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं. जैसे एग्जांपल्स के तौर पे देख लो कि कभी हम लोग देखते हैं कि रोड के किनारे किसी कुत्ते की डेथ हो गई, रोड के किनारे की कोई भी जानवर है जो मर गया है, तो हम लोग क्या देखते हैं, कुछ देर बाद में काफ़ी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर आकर के पनपने लगते हैं और क्या करते हैं, वो उसको डिकम्पोज करते हैं. सो एक्चुअली दोज आर द सेप्रोफाइट्स. वो सेप्रोफाइट होते हैं और सेप्रोफाइट का काम ये होता है कि वो डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं. एंड द एग्जाम्पल ऑफ द सेप्रोफाइट्स आर, अगर हम लोग सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल्स की बात करने चाहें तो fungi as well as bacteria. So these are the examples of the saprophytes. So it is quite simple. These are the examples of the saprophyte. Okay. Now parasite. So parasite are what? Parasite are those type of microorganisms who also depend on the organism, but parasite are those type of organism who depends on the alive animal for their nutrition. ये parasite भी किसी पे डिपेंड ही होते हैं, लेकिन ये alive किसी जिंदा इंसान पे या जिंदा किसी जो जिसमें लाइफ बाकी है भी उस पर वो डिपेंड करते हैं. उसके सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं, स्किन के ऊपर, और वहां से उसके ब्लड को सक करते हैं और थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लड they have got the nutritions as well as they had got the food. Okay, so अगर बात करते हैं parasites की, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें प्लाज्मोडियम.
प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, हम लोग जानते हैं एक्चुअली प्लाज्मोडियम इज द मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है। तो मच्छर क्या करता है, हम लोग के स्किन के ऊपर बैठता है और अपने डंक से क्या करता है कि ब्लड को सक करता है। सो थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लड, थ्रू द हेल्प ऑफ सकिंग द ब्लड, द मॉस्क्यूटो आर the mosquito got their nutritions, mosquito got their food. So that's why we can say that the plasmodium or mosquito are the example of the parasite. एक दूसरा एग्जांपल ले लो राउंड वर्म का। सो व्हाट इज राउंड वर्म? राउंड वर्म क्या है, कभी कभी हमारे पेट में ज़्यादा दर्द होता है तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है कि कुछ नहीं, आपको पेट में बस वो क्या होता है राउंड वर्म हो गया, आप कीड़े की दवा खा लो ठीक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग राउंड वर्म के लिए कुछ दवा खाते हैं और दवा खाने के बाद में क्या होता है, कुछ दिन के बाद में हमारा स्टमक पेन जो है वो दूर हो जाता है। तो एक्चुअली राउंड वर्म क्या है, वो भी हमारे, हम लोग जिंदा है तो हमारे अंदर अगर राउंड वर्म आ गया, हमसे वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। So we can say that here roundworm is also the type of the parasite. So here a very little type of differences between the parasite and the saprophyte. Saprophyte क्या करता है कि ये डेड डिकेइंग मैटर पे, ये डेड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करता है, और पैरासाइट क्या करता है कि ये अलाइव मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करता है। सो these are the very distinct type of the differences between the saprophyte as well as parasite. Now I am going to deal about the holozoic. Actually holozoic means what? Holozoic means, actually holo means liquid, holo means liquid. So holozoic are those type of the organism who obtained their food from the liquid materials. Okay, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लिक्विड मटेरियल से अपने फूड को, अपने न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करे, उसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक। सो होलोजोइक, ऑल द ह्यूमन बींग्स आर द होलोजोइक। ओके, हम लोग होलोजोइक हैं। अब तुम ये पूछोगे कि कैसे, हम लोग तो जो भी खाते हैं वो काफ़ी सॉलिड होता है। ओके, हम लोग, तुम बोलोगे कि हम लोग जो भी खाते हैं वो सॉलिड होता है, तो हम लोग होलोजोइक कैसे हो गए? सो इट इज़ क्वाइट सिंपल। हम लोग होलोजोइक कैसे हुए कि हम लोग जो भी सॉलिड चीज़ खाते हैं पहले हम लोग उसको अपने टिथ के हेल्प से उसको ब्रेक डाउन करते हैं। आफ्टर द ब्रेक डाउन, आफ्टर द ब्रेक डाउन दोज फूड्स आर पासेस थ्रू द हेल्प ऑफ इसोफेगस, दैट इज आवर फूड पाइप, एंड अगेन goes into the stomach, और स्टमक में जाने के बाद वहाँ से फिर से फर्दर HCl का सिक्रेशंस होता है, गैस्ट्रिक जूसेस बाहर आते हैं, एंजाइम्स बाहर आते हैं, और सारे के सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, उस फूड्स को अगेन फिर से तोड़ने का काम करते हैं। और जब वो काफ़ी फाइन छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है तो टूटने के बाद में फिर से एक बार उसमें फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और डाइजेशन के बाद में सारे के सारे फूड, ऑल द फूड्स आर अगेन कन्वर्टेड इनटू liquid medium, and once the food is converted into liquid medium, then through the help of our blood capillaries, through the help of villi, all the nutrients are absorbed by our villi, and all the nutrients are absorbed by the villi and sent into the bloodstream, and through the help of bloodstream all the nutrients are distributed throughout our body. जहाँ जहाँ पर जिस सेल को जितने फूड की ज़रूरत है वो फूड वहाँ पे उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो भी हमारे बॉडी में फूड का न्यूट्रिशन हम लोग ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, थ्रू द लिक्विड मीडियम। सो दैट्स वाई वी आर द होलोजोइक, and we obtained our nutritions from the holozoic method. So that's why we are commonly said to be the holozoic, and this is the holozoic nutrition. So this is all about today's class. मेरे वीडियो को देखें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प से आगे और भी वीडियोस बनाता रहूं और इस तरह से आप लोगों का डाउट्स काफ़ी दूर होता रहे। और उम्मीद है कि इस लॉकडाउन में अभी सारे के सारे कोचिंग बंद हैं, तो इस समय में, इस कठिन समय में हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, like and comment. Okay, so this much for the day. Okay, thank you class.